Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope you all are safe at your home and also doing studies on time. So today I am going to start the new chapter, that is forms of business organizations. So look, content as per latest CBSE syllabus: sole proprietorship, concepts, merits and limitations, Hindu undivided family business concept, partnership concept, types, merits and limitations of partnership, registration of a partnership firm, partnership deed and types of partners. Next is cooperative societies, concept, merits, limitations. Next is company. What is company? Concepts, merits, limitations, types, formation of company, and last is choice of form of business organization. But this is not part of your syllabus in this year. Now, introduction कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है. सो लुक द इंट्रोडक्शन. ए बिजनेस एंटरप्राइजेज is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. So every business entity adopts some form of business organization to carry out business activity. So business enterprises may be classified into three broad categories. First is private sector enterprises, second is public sector enterprises, and third is joint sector enterprises. So first is private sector enterprises. Private sector enterprises, the business enterprises which are on control and managed by private individuals, are known as private sector enterprises. Like कोई भी शॉप मान लो, आप एक एग्जांपल ले लो, शॉप ले लो या रिलायंस इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी ले लो, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है. ये सब क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनी है जिसमें किसी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा जो ऑनर है उसका लगाया हुआ होता है. सो द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ऑन कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. These enterprises work with the main motive of earning profit. मेन प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट. अर्निंग प्रॉफिट एग्जाम्पल रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी एंड विप्रो एक्सेट्रा. नाउ public sector enterprises. Public sector enterprises, the business enterprises which are on control and managed by the central and state government are known as public sector enterprises. Sector enterprises. Again I repeat, the business enterprises which are on control and managed by the central and state government are known as public sector enterprises. These enterprises work with the main motive of service. Example, Steel Authority of India Limited. आप पढ़ना स्टील. अब जब आप बिजनेस लाइन में, आप जब कॉमर्स में आ चुके हो तो आपको बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी कंपनीज है, कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कौन सी हुई जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है. ठीक है, तो वो प्राइवेट कंपनीज है जिसको एक उनका ऑनर है, वो खुद ही मैनेज कर रहा है, वो खुद ही कैपिटल लगा रहा है, उसका जो अर्निंग मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट है. गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट हाँ ठीक है, कुछ नॉमिनल चार्जेस हमसे लेती भी है, हम टैक्सेस पे करते हैं. तो ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. नाउ थर्ड इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ऑन कंट्रोल and managed jointly by private entrepreneur and government. Like shares, हम बोलते हैं कि शेयर्स, तो कुछ पैसा किसका लगा हुआ हो? प्राइवेट सेक्टर का लगा हो, कुछ पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ हो, तो वो दोनों मिला के क्या हुआ? जॉइंट सेक्टर enterprises. In these enterprises, the day-to-day management lies in the hands of private entrepreneur, whereas government control and supervision by its member in board of directors
एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन एक्सेट्रा, कोचिन रिफाइनरीज एक्सेट्रा. नाउ फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन कौन से हो सकते हैं. आप देखिए कैसे आप वर्क कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी. सो फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ इज कंपनी. सो फर्स्ट हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स प्रोप्राइटर, वन मीन्स ऑनर, मतलब एक ऑनर. ठीक है. ए बिजनेस ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. अगेन आई रिपीट, a business on managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship organization. Definitions of different authors, तो हम देखें. Sole traders business is a type of business unit where one person is responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business. क्या बता रहा है यहाँ पे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो बिजनेस है, या सोल प्रोप्राइटरशिप वो है जहाँ पे एक अकेले व्यक्ति को ही कैपिटल लगानी पड़ती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए. उसी अकेले को ही जो भी रिस्क होगी वो उस अकेले को होगी. मैनेजमेंट करना होगा तो अकेले को करना होगा. सारा काम किसका है? सिर्फ अकेले उस एक व्यक्ति का, सिंगल ऑनर का. और देख लीजिए, the sole proprietorship is the form of business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operations and who alone runs the risk of failure. जो अकेला चलाता है, फेलियर भी आपको कभी लॉसेस भी होते हैं तो अकेले को बियर करने होते हैं. और देख लीजिए, a sole proprietor is a person who carries on business exclusively by and for himself. He is not only the owner of the capital of the undertaking but is usually the organizer and manager and takes all the profits or responsibility for losses. And the sole proprietorship is the supreme judge of all matter pertaining to his business, subject only to general laws of land and to such special legislations as may affect his particular line of business. Now features of sole proprietorship. The main features of sole proprietorship firms are mentioned. Features, क्या विशेषताएं हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की? देखिए, फर्स्ट इज सिंगल ऑनरशिप. The sole proprietorship firm is owned by a single individual only. All the capital is supplied by the single individual from his own wealth और फ्रॉम बोरोड फंड. उस एक अकेले व्यक्ति की कैपिटल लगी हुई होती है, एक अकेले पर्सन की कैपिटल लगी हुई होती है. कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से बोरो कर रहा है, कहाँ से कुछ क्रेडिट ले रहा है. उसका खुद का पैसा हो है, उसका अकेले को ही लगाना होता है. कोई मतलब नहीं होता चाहे वो लोन ले रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पर उस एक अकेले पर्सन को ही लगाना होता है. तो वो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ऑनरशिप. सेकेंड इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग. Yes, in sole proprietorship firm, whole risk is borne by a single individual only. The sole beneficiary of all the reward is one individual only. जब प्रॉफिट उस अकेले को मिलना है तो लॉस भी उस अकेले को ही बियर करना पड़ेगा. Likewise, if there are losses, he or she alone has to bear them. Thus, he or she alone bear the risk of business. Third is no separate legal entity. A sole proprietorship has no legal identity separate from that of its owner. Law makes no difference between the owner and the enterprise's business, and the owner exists together. No separate legal entity means कि बिजनेस में कितना भी लॉस हो जाए तो उसका क्या होगा? आपको पर्सनली लगाना होगा. अपने पास में जो असेट्स है उसमें से पैसा लगाना होगा, कोई और नहीं आएगा वहाँ पे. तो यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. ठीक है. फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस. बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नॉमिनल या बहुत ही मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं सिंगल प्रोप्राइटरशिप को या सोल प्रोप्राइटरशिप को.
no legal formalities are required to start, manage and dissolve sole traders business. Only a license is necessary in certain type of business. The proprietors enjoy freedom of operation in sole proprietorship concern. एग्जाम्पल ले लो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के, जनरल स्टोर, ठीक है, जनरल स्टोर एज ए ऑनर आप वर्क कर रहे हो तो सलोन and many more. Now, fifth is unlimited liability. In sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debts of the business. Unlimited liability क्या होती है? जहाँ पे लॉस भी हो रहा है तो वहाँ पे पैसा आपके पास से ही लगाना होता है आपको. हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ 2 लाख का लॉस हुआ है और 150 लाख रुपीज़ आपको क्या हुआ, आपके पास आपने दे दिए और 50,000 आपको और देने, तो वो पैसे भी आपको अपने पास से ही देने होंगे. ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं पड़ेगा. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि आपका जितना लॉस हुआ वो सारा पैसा आपके पास से ही लगना है. जैसे पार्टनरशिप में क्या होगा कि वो डिवाइडेड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, ठीक है. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ द प्रोप्राइटर is personally liable for all the debts of the business in case of business losses if the business assets are not sufficient to meet all business liabilities. Now, one man control. So, the proprietor is the sole owner of the firm and has full control over it. वन मैन कंट्रोल. अब जब अकेला पर्सन है, जब अकेला सब लॉस भी बियर कर रहा है, अकेला प्रॉफिट ले रहा है, तो कंट्रोल जो बिजनेस पे होगा उस अकेले पर्सन का होगा. सो द प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म and has full control over it. The ownership and management lies in the hands of one person only. Some persons or manager may be employed to help the owner, but ultimate control lies with the sole trader himself. Now, small size. The sole proprietorship firms operate on a very small scale as all the funds are arranged by one person. Okay? By one person, and there is no separate the sole proprietorship firm operate on a very small scale as all the funds are arranged by one person. Total management and control lies with one person only. A sole trader can arrange limited funds and has limited managerial ability. Therefore, the scale of operation is generally limited. वो बहुत ही nominal काम करेगा, बहुत ही कम काम करेगा, बहुत ही sole proprietorship मतलब अकेले को कंट्रोल करना है, अकेले को लॉस बियर करना है, छोटे साइज में काम करेगा, स्मॉल स्केल पे वर्क करेगा, लार्ज स्केल पे वर्क नहीं करेगा. लार्ज स्केल पे करना होगा तो वो हम आगे देखेंगे. जो पार्टनरशिप या कंपनीज, बहुत अच्छा पैसा है किसी पास तो वो अपनी कंपनी भी ओपन कर सकता है, तो वो हम आगे देखेंगे. फॉर्मेशन एंड क्लोजर. There are no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm. There is no separate law governing this form of business. Only in some cases a license might be required, but otherwise forming and closing sole proprietorship business is very simple. It is very easy. So, first feature is single ownership. Second is individual risk bearing, no separate legal entity, freedom of operation, unlimited liability, one man control, small size, formation and closure. Now, merits या advantages of sole proprietorship firm. आप बहुत डीप स्टडी करिएगा बिकॉज केस स्टडीज आती है. केस स्टडीज हम देखेंगे क्या होती है, हम समझेंगे. सो लुक, मेरिट एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. फर्स्ट इज quick decision. Okay, quick decision. In sole proprietorship firm, all the decisions are taken by the proprietor himself. Yes, he is not supposed to consult anyone and waste time. By quick decisions, immediate action can be taken which bring flexibility of operation. There are no delays and business can quickly adapt itself to the changing environment. सो क्या है क्विक डिसीजन. आपको अकेले को डिसीजन लेना है तो आपका कंट्रोल होगा उस पर कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है. आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए आपको क्या डिसीजंस लेने, तो आप क्विक डिसीजन लेंगे.
जल्दी से डिसीजन लेंगे। और जब आपको डिसीजन 5 लोगों के साथ शेयर करके फिर लेना है कि हाँ सबकी सहमति से काम करना है, तो आप सबसे पूछेंगे, तो उसमें एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। बट यहाँ पे तो आप जब सिंगल हो रहे हैं तो क्विक डिसीजन होगा। कॉन्फिडेंटली, so the sole proprietor is not expected to share his secrets with others. There is no legal compulsion for a sole proprietor to publish his accounts. All the decisions are taken by the proprietor, so it becomes easy for him to maintain secrecy and get better competitive strength. सेक्रेट, उसकी जितनी भी रूल्स होंगे उसके बिजनेस के, जो उसके अकाउंट डिटेल्स होंगी, वो सारे सब कुछ सीक्रेट होंगे, क्योंकि उस अकेले पर्सन के पास में है, किसी के पास में नहीं है उसकी डिटेल्स। सो कॉन्फिडेंटली क्या होगा, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ठीक है मेरा सीक्रेट्स किसी के पास नहीं है, और बिजनेस अच्छे से रन करेगा। नाउ डायरेक्ट इंसेंटिव, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड, which means if proprietor puts extra efforts then profit increase and proprietor gets extra income. So proprietor is always motivated to work extra to get extra reward. क्या होगा, जो भी पैसा मिलना है, जो भी प्रॉफिट मिलना है अकेले का है, खुद का है, तो वो और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। जितना प्रॉफिट है अकेले का है, किसी से शेयर नहीं करना है उसको। सेंस ऑफ accomplishment, there is a personal satisfaction involved in working for oneself. The success in business not only contribute to self satisfaction but also instills in the individual's sense of accomplishment and confidence. Fifth is easy to form and dissolve. A sole proprietorship organization is easy to form. आपने देखा कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं आपको करना पड़ता है, तो आपका बहुत इजी है कि आपने ओपन करके बैठ गए काम को। हाँ ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो बहुत इजी हो गया है। सो नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ नॉट गवर्न by any specific law. The sole proprietor can close the business whenever he desires without any legal formality. It can be closed by paying back its debts. Okay, now disadvantages या डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देख सकते हैं कि ईजी टू फॉर्म और डिज़ोल्व, ये भी मेरिट है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, पर्सनल टच, सेक्रेसी, independent control, suitable for small scale operations, sense of accomplishment. These all are the advantages of sole proprietorship. Now disadvantages and demerits of sole proprietorship firm. The first is limited resources. So क्या क्या डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स, क्या कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या क्या इसके लॉसेज हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। लिमिटेड रिसोर्सेज, यस, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरिंग्स. देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन. This reduces the scope for business growth. The funds are not sufficient for medium scale or large scale business. Yes, हमने खुद ने पहले ही पढ़ लिया ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसके लिए है, स्मॉल स्केल के लिए, क्योंकि अकेला पर्सन लॉस बियर करेगा, अकेला प्रॉफिट करेगा, अकेला ही कैपिटल लगाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता, अकेले के पास में पैसा नहीं है। यदि पैसा उसके पास होता तो वो लार्ज स्केल पे वर्क करता। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि उसके पास जितना पैसा वो उतना ही उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। Unlimited liability, the sole proprietor is personally liable for all the debts. In case of heavy losses, the proprietor will not only lose all his business assets but he may have to sell his personal property to pay back his debts. आप debts को पे, यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि आपका 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, हमने लिया पहले एग्जांपल, 1.5 लाख तो आपने आपके पास से दे दिए, आपके पास में कैश पड़ा था आपने दे दिया, लेकिन अब 50,000 भी पे करने के लिए आपको चाहे आपकी असेट सेल करनी पड़े, आपकी पर्सनल असेट सेल करनी पड़े, तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल, यस, इन सोल yes, in sole proprietorship firm, all the activities are performed by a single individual. A single individual cannot be expert in all the field. Yes, एक अकेला पर्सन सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं होता। उसका हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो उसका मार्केटिंग अच्छा नहीं हो सकता है ना। ही मे बी ए गुड सेल्स पर्सन बट नॉट ए गुड मैनेजर, या मैनेजमेंट अच्छे से करना नहीं आ रहा हो।
it is difficult to find all the skills and expertise in one person, and sole proprietor generally cannot afford to appoint specialized and expert employees. The proprietor is overburdened with too many tasks. उसके पास सारे काम उस अकेले पर्सन को करने हैं. हम मानते हैं कि लिमिटेड मैनेजरल स्किल होगी, अकेले पर्सन में सारी स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. नाउ limited life of a business. Yes, the survival and continuity of sole proprietorship firm depends upon one person only. If the proprietor fall ill or become insolvent, then the business may come to an end. या तो इंसॉल्वेंट, या तो तबीयत ख़राब हो गई है, या पैसा नहीं है अब उसके पास, तो वो बहुत लिमिटेड लाइफ होती है बिज़नेस की. उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप के जो बिज़नेस होते हैं उनकी बहुत लिमिटेड लाइफ होती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी और नहीं है कोई संभालने वाला, तो वो बिज़नेस बंद ही होना है. अल्टीमेटली वो बंद ही होना है. एक हम एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हैं, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट. द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू ए वेरी लार्ज साइज. इट इज़ ए सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस ओनली. सो सोल, हम क्या कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास में, सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज. द सोल प्रोप्राइटरशिप is suitable for enterprises which require personal attention and limited capital, such as local grocery shops, small bakery shops हो गई, टेलरिंग shops हो गई, हेल्थ क्लिनिक हो गया, डॉक्टर क्लिनिक्स हो गया, लॉयर्स हो गया, ऑफिसेज हो गए. सलून्स तो आजकल बहुत अच्छे स्केल पे वर्क कर रहे हैं. सो हम ये नहीं बोलेंगे कि उनके पास कैपिटल कम हुई, लेकिन हाँ एक छोटे आप स्मॉल स्केल पे उसका वर्क स्टार्ट कर सकते हो. तो हम एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप उसको बता सकते हैं. सो लुक केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ देखो आपकी कैसे आएगी. यहाँ पे देखिए, मनोज इज़ रनिंग ए जनरल स्टोर. एक स्टोरी टाइप मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया बहुत ही. तो यहाँ पे देखिए, मनोज इज़ रनिंग ए जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स इन ए लोकल मार्केट. ही टेक्स ऑल डिसीजंस अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ. अकेला ले रहा है विदाउट एनी इंटरफेरेंस from other and get all the profit as a reward for bearing the full risk. ठीक है. In the context above case, first identify and define the form of business organization in which Manoj has formed his business. Sole proprietorship, क्योंकि देखो आपको इसने यहाँ क्या बोला है कि मनोज अकेला एक उसको रन कर रहा है एक शॉप को जिसका नाम क्या है, डेली नीड्स इन ए लोकल मार्केट, जनरल स्टोर है. ही टेक्स ऑल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ. अकेला उस बिजनेस रिगार्डिंग डिसीजन ले रहा है. तो वो सारी चीज़ें हमने फीचर्स और मेरिट डीमेरिट्स में हमने पढ़े. विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ फ्रॉम अदर एंड गेट ऑल द प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर बियरिंग द फुल रिस्क इन द कंटेक्स्ट अबाव केस. नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मनोज हैज फॉर्म्ड हिज बिजनेस. तो मनोज कहाँ काम किसके क्या काम कर रहा है, एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप वो वर्क कर रहा है. स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट फॉर्म. तो फीचर्स आप बता दीजिएगा जो हमने अभी पढ़ी है. फीचर्स हो गई सिंगल ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, या नो सेपरेट लीगल एंटिटी, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नाउ सेकंड इज श्रीराम स्टार्टेड ए कॉन्फेक्शनरी बिजनेस फ्यू ईयर्स बैक. ड्यू टू कंटिन्यूस losses in business he decided to close the business. He owes 4 lakhs to supplier firm who he had been taking good on credit. His business funds are insufficient to repay the debts. Can supplier recover the fund from the personal assets of Sri Ram as his business assets are insufficient to repay the debts? Why or why not? Yes, supplier can recover his debt from personal property of Sri Ram, and he is a sole proprietor due to feature of unlimited liability of sole proprietor. Okay. Now, Hindu undivided family. Joint Hindu family. We will discuss about the Hindu undivided family in next video. Okay, thank you and have a nice day to all.